में क्या क्या आता है उसके साथ। सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये आप लोग M3 में पढ़ चुके हो, टॉपिक पूरा वही है, बट हमको कैसे याद रखना है वो पॉइंट बस मैं बता रही हूँ आप लोगों को, उसे देख लो। Complex variable x plus iy is a complex variable. It is denoted by z, where x and y both are real numbers. I is equal to under root of -1. Now complex function f of z is equal to u plus iv is a function of complex variable. It is denoted by, in general, w. So w is equal to u plus iv, where u and v are real functions of x and y and known as real part and imaginary part of w respectively. U is real part of w because it is free from I, and v is imaginary part of w because it is with I. Now continuous function f of z is said to be continuous at point z is equal to z0 if f of z0 exists, and limit z tends to z0, f of z is equal to f of z0. That is, the limiting value of f of z at as z tends to z0 coincident with the value. अगर आप लोग गेट प्रिपेयर करोगे तो आपको कैलकुलस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें आप कंटिन्यूटी बहुत डिटेल में है, तो वहां पे आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, बट इतना बस ध्यान में रखो कि व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. f of z is continuous at z is equal to z0 when the limiting value of f of z is exist as z is equal to z0. Clear? A function f of z which is not continuous is known as discontinuous. A function f of z is said to be differentiable if the limit exists. कौन सी लिमिट एग्जिस्ट रहेगी? लिमिट z tends to z0, f of z minus f of z0 upon z minus z0. Now analytic function. A function f of z is said to be analytic at point z is equal to z0 if f of z is differentiable at z is equal to z0 and every point of a neighborhood of z0. Neighborhood का मतलब आप सिंपल ऐसा एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर करो जिसका की सेंटर है z0. ठीक है? So necessary and sufficient condition for f of z to be analytic if f of z जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो f of z हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? u plus iv के फॉर्म में रहेगा. तो u plus iv is differentiable at every point when its first order derivative u and v satisfy the Cauchy's-Riemann condition. This is very important. Del u by del x is equal to del u by del y, and del u by del y is equal to minus of del v by del x. So f of z is equal to u plus iv is is analytic function when these two conditions are satisfied. Clear? अब यहाँ पे आप ध्यान दो, f of z is equal to u plus iv where u and v are real functions of two variables x and y. जब हम x और y को मतलब कार्टेशियन प्लेन को पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा उसका पोलर फॉर्म. ये आप लोगों को मालूम होगा कि कार्टेशियन टू पोलर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं ना. So when w is equal to f of z is analytic function where z is x plus iy and x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्शन कैसा रहता है? x is r cos theta, y is r sin theta. तो f of z जब कार्टेशियन है तब ये कॉचीज रीमान कंडीशन है ये वाली, बट जब f of z is equal to u plus iv पोलर फॉर्म में रहेगा मीन्स u and v are functions of r and theta, तब पोलर फॉर्म की कॉचीज रीमान कंडीशन ये होती है, ये लास्ट वाली जो दो दिख रही है. डेल यू बाय डेल आर प्लस आई डेल वी बाय डेल आर is equal to 1 upon r del v by del theta minus I upon r del u by del theta. So by equating the real and imaginary parts, so del u by del r is equal to 1 upon del v by del theta and del u by del theta is equal to minus of r del v by del theta. This is Cauchy's Riemann condition in polar form. So f of z is analytic when it satisfy CR condition. फिर CR condition फंक्शन अगर कार्टेशियन है तो कार्टेशियन फॉर्म वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, फंक्शन अगर पोलर है तो पोलर फॉर्म वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज हार्मोनिक फंक्शन.
any function f of x having continuous partial derivatives and satisfy Laplace equation is called harmonic function. Laplace equation क्या है? Second order derivative of f with respect to x plus second order derivative of f with respect to y is equal to 0. So any function which is a function of two variable x and y is harmonic if this satisfy del स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक फंक्शन. यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखनी है. इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक देन यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन. एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है मतलब कॉचीज रीमान कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यू एंड वी इंडिविजुअल क्या होंगे? हार्मोनिक फंक्शन. मतलब यू कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वी भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. तो ये इसका प्रूफ है. ये आप लोगों को इतना देखना नहीं, बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक देन यू एंड वी आर हार्मोनिक. एंड व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन? इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन. ठीक है. नाउ हार्मोनिक फंक्शन इन पोलर फॉर्म. हर चीज यहाँ पे दो रहेंगी क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ रहे हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म भी एग्जिस्ट रहता है, पोलर फॉर्म भी एग्जिस्ट रहता है. तो पहले हमने देखा सी आर कंडीशंस, मतलब एनी फंक्शन एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक. कंडीशन क्या है? सी आर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. वो कंडीशन भी दो फॉर्म में देखी हमने. पहले कार्टेशियन फॉर्म, सेकेंड इज पोलर फॉर्म. वैसे ही हार्मोनिक फंक्शन भी दो फॉर्म में, पहले कार्टेशियन फॉर्म एंड फिर पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म की हार्मोनिक कंडीशन क्या है? डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल यू बाय डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एंड सेम कंडीशन फॉर फंक्शन वी, डेल स्क्वायर v बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल v बाय डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर b बाय डेल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So if u and v are harmonic, u and v are in कार्टेशियन फॉर्म, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. और हार्मोनिक पोलर फॉर्म है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है. Hence if f of z is analytic then u and v are harmonic. क्या देखा हमने? f of z अगर एनालिटिक है तो u and v हार्मोनिक होते हैं. इन दिस केस u and v are called conjugate harmonic of each other, right? u and if f of z is equal to u plus iv is analytic function, u and v are harmonic, then u and v are known as conjugate harmonic of each other. So find conjugate harmonic function when real part of u is given. ये आप लोगों ने जब M3 पढ़ा होगा तब विथ प्रूफ ये सारे रिजल्ट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने. अभी आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है. फाइंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन व्हेन रियल पार्ट u इज गिवन. मतलब f ऑफ z एनालिटिक है, u एंड v हार्मोनिक है, सिर्फ हमको u दिया है, हमको v निकालना है. ठीक है. सो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डेल यू बाय डेल वाई dx प्लस इंटीग्रेशन डेल यू बाय डेल एक्स dy प्लस c. Now find conjugate harmonic function when the imaginary part v is given. So u is equal to integration del v by del y dx plus integration minus del v by del x dy plus c. Now same in polar form. So find conjugate harmonic function when the real part u is given. So v is equal to integration minus 1 upon r del u by del theta dr plus integration r del u by del r d theta plus c. Find conjugate harmonic function when imaginary part v is given. So u is equal to integration 1 upon r del v by del theta dr plus integration minus of r del v by del r d theta plus c. ये चारों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है. अब एक प्रॉब्लम देखो कैसे प्रॉब्लम आते हैं गेट में. इफ u इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन. मतलब f ऑफ z किससे मिलके बनता है? एनालिटिक फंक्शन दो फंक्शन से u और v से मिलके बनता है. उसका हमको हाफ पार्ट दिया है u, हार्मोनिक है और हमको फाइंड क्या करना है कि इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक. फाइंड इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक मतलब u दिया है तो हमको क्या निकालना है? v. ठीक है. तो अब ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम हार्मोनिसिटी भी चेक करते हैं इसकी. आप देखो व्हेन u इज हार्मोनिक व्हेन डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
ये कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे u क्या है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y है, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म की कंडीशन लगेगी. सो u इज इक्वल टू log of x square plus y square, find its first order and second order derivative. Similarly, find its first order and second order derivative with respect to x. Similarly, find first order and second order derivative with respect to y. So del square u by del x square plus del square u by del y square is equal to 0. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0, ये 0 आ गया, मतलब u क्या है, u इज हार्मोनिक. अब u हार्मोनिक है, हमको निकालना क्या है, v. तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है कॉन्जुगेट हार्मोनिक का. So v is equal to integration minus of del u by del y dx plus integration del u by del x dy plus c. ठीक है. सो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब del u by del y, तो आप पिछले स्लाइड में देखो del u by del y की ये वैल्यू हमने निकाली हुई है. सिमिलरली del u by del x की भी हमने वैल्यू निकाली हुई है. ठीक है. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, दिस इज del u by del y एंड दिस वन इज del u by del x. सो अब आप ध्यान दो, इंटीग्रेशन करना है इस पूरी टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू x. with respect to x इंटीग्रेट कर रहे हैं, मीन्स फंक्शन ऑफ y is constant and that's why this numerator 2y is constant. So minus of 2y को हमने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन 1 upon x square plus y square dx प्लस सेकेंड टर्म में इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, मतलब फंक्शन ऑफ x इज कांस्टेंट, इसलिए यहाँ का जो 2x है वो हमने इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लिया. सो 2x इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy प्लस c. अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मीन्स y ट्रीट एज अ कांस्टेंट, सो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर ऐसा हो गया, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास tan इनवर्स. सो 1 अपॉन y tan इनवर्स x अपॉन y प्लस 2x, यहाँ पे x कांस्टेंट है तो आ जाएगा 1 अपॉन x tan इनवर्स x अपॉन y. So this y and y cancel, x and x is cancelled. So v is equal to minus of 2 tan inverse x upon y plus 2 times tan inverse y by x. यहाँ पे ना ये थोड़ा मिसप्रिंट है बेटे, यहाँ पे y by x आएगा, tan inverse y by x plus c. So this is conjugate harmonic of v. Clear? When u is given, v हम फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली एक प्रॉब्लम हम देखेंगे जब v दिया है. अब यहाँ पे v क्या है, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x साइन एच वाई. तो ये पहले हार्मोनिक प्रूफ करेंगे और फिर हम v से सेकेंड हाफ पार्ट निकालेंगे, मतलब u निकालेंगे. सो v इज हार्मोनिक व्हेन इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x साइन एच वाई, तो डेल v बाई डेल x इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सिमिलरली डेल v बाई डेल y इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. Substitute these values in the left hand side, solve this value, you get 0. That means the given function v is harmonic function. Clear? अब हमको निकालना है u, तो u का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल v बाई डेल y dx प्लस इंटीग्रेशन minus of del v by del x dy plus c. So del v by del y ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस ऑफ साइन x cos h y प्लस इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डेल v by del x, यहाँ पे ये कैलकुलेटेड है तो ये वाला भी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, cos x sin h y dy प्लस c. अब आप ध्यान दो, फर्स्ट टर्म में फिर से इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब फंक्शन ऑफ y is constant, so cos h y is constant function and integration of sin x is minus cos x. Similarly in the second term integration हो रहा है with respect to y, so cos x is constant and integration of sin h y is cos h y plus c. So its real part u is equal to 2 times cos h y cos x plus c. ठीक, इस तरह से ये छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं गेट में. आप सेम प्रॉब्लम देखेंगे इन पोलर फॉर्म. सो प्रूव दैट u इज इक्वल टू r स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस r sin थीटा इज हार्मोनिक फंक्शन एंड हेंस फाइंड इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक. मतलब क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v हमको निकालना है, लेकिन यहाँ पे u किस टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ आर एन थीटा, मतलब पोलर फंक्शन है तो पोलर फंक्शन वाली कंडीशन लगेगी. डेल स्क्वायर u बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r डेल u बाय डेल आर प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल थीटा स्क्वायर.
तो u दिया है, देखो u इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आर साइन थीटा। पार्शियल डेरिवेटिव सबको आता होगा। when we differentiate u with respect to r, theta treat as a constant, है ना? So del u by del r cos 2 theta is constant, derivative of r square is 2r. In the second term, sin theta is constant, derivative of r is 1. And del square u by del r square means differentiate del u by del r one time again with respect to r. So it is 2 times cos theta, and completely sin theta treat as a constant, so its derivative is 0. Then del u by del theta, so in that case r is constant, theta is differentiable function, so derivative of cos 2 theta is minus of 2 sin 2 theta, plus r is constant, derivative of sin theta is cos theta, and del square u by del theta square is minus of 4 r square cos 2 theta minus r sin theta. And substitute these value in the left hand side of this condition. ये है ना हार्मोनिक की कंडीशन, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए अगर फंक्शन हार्मोनिक है तो, ठीक है। सो डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर, ये वैल्यू रखी हमने डेल यू बाय डेल आर की, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, अब देखो कितना आ गया, 0. So the given function u is harmonic. When given function u is harmonic, that means its conjugate harmonic is exist. So apply ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे फिर से देखो पोलर है तो पोलर फॉर्म वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। v is equal to integration of minus 1 upon r del u by del theta dr plus integration of r del u by del r d theta plus c. So minus 1 upon r as it is, del u by del theta जो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे वैल्यू रखी इसकी, प्लस इंटीग्रेशन r as it is, del u by del theta की ये वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया हमने, इसको सॉल्व किया। अब जब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आप देखो फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू r मींस थीटा इज कांस्टेंट, सो sin 2 theta is constant, integration of 2r dr. Second term minus cos theta is constant, integration of dr only. Now in this term, integration with respect to theta means r is constant, so 2r square is constant, integration of cos 2 theta d theta, plus in the last term r is constant, integration of sin theta d theta. अब इसको सॉल्व करो, sin 2 theta integration of 2r is 2 times r square by 2, cos theta is constant, integration of dr is r, 2r square is constant, integration of cos 2 theta is sin 2 theta by 2, r is constant and integration of sin theta is minus of cos theta. So just जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, v क्या आ गया, 2r square sin 2 theta minus of 2r cos theta plus c. Right? Okay. Now if v is given, find its conjugate harmonic, तो फिर से v के लिए कंडीशन लगाएंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब v हार्मोनिक है। अब अपने को निकालना है इसका इमेजिनरी पार्ट, पोलर फॉर्म में हमने ये इमेजिनरी पार्ट गिवन है, u निकालना है रियल पार्ट, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे सारे डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव्स की वैल्यू रखी, इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, ठीक है। मतलब ये है कि फंक्शन इज एनालिटिक व्हेन CR कंडीशन सेटिस्फाई। CR कंडीशन भी दो कंडीशन है बेटा, एक पोलर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। हार्मोनिक की भी दो कंडीशन है, एक पोलर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों फॉर्म एग्जिस्ट रहते हैं। एंड व्हेन f of z is analytic, u and v are harmonic, then u and v are known as conjugate harmonic of each other. So दोनों में से अगर एक की वैल्यू दी है तो हम दूसरे की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। क्लियर इतना? नेक्स्ट इज मिलने-थॉम्सन्स मेथड। So Milne-Thomson's method. Milne-Thomson's method is used to construct an analytic function when its real part or imaginary part are known. अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि जब हमारे पास हमने अभी तक जो देखे प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग भी तो f of z आ रहा था, है ना,
क्योंकि जब u दिया है तो हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब v दिया रहेगा तब भी हम u कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f ऑफ z तो वैसे भी हो रहा था u प्लस आई वी। फिर मिलने थॉमसन मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है? तो मिलने थॉमसन मेथड का ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तो इसका रियल या इमेजिनरी पार्ट दिया है, जैसे सपोज रियल पार्ट दिया है, तो विदाउट कैलकुलेटिंग इमेजिनरी पार्ट हम डायरेक्ट एफ ऑफ जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट दिया है तो जरूरी नहीं है यहाँ पे कि हमको पहले रियल पार्ट कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने मेथड में क्या देखा कि रियल पार्ट दिया था तो हमको इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना पड़ता था, और फिर हम एफ ऑफ जेड को कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। बट मिलने थॉमसन मेथड से हम एनालिटिक फंक्शन डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका हाफ पार्ट मालूम हो तब भी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है देखो मिलने थॉमसन मेथड का, ये आपको लास्ट रिजल्ट ही बस याद रखना है, ये याद रखना है, ये रिजल्ट। ठीक है, दिस इज एफ ऑफ जेड व्हेन इट्स रियल पार्ट इज गिवन। एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है मालूम है, बट क्या है एफ ऑफ जेड हमको मालूम नहीं। एफ ऑफ जेड का हमको हाफ पोर्शन मालूम है, आइदर रियल और इमेजिनरी। So when real part is given, f of z is equal to integration of phi 1 at point z0 dz minus of I integration of phi 2 uh, at point z0 dz plus c, where phi 1 is equal to del u by del x and phi 2 is equal to del u by del y. Clear? तो ये क्या है? दिस इज f of z when its real part is given, and when imaginary part is given, f of z is equal to integration psi 1 at point z0 dz plus I integration psi 2 at point z0 dz plus some constant c, where psi 1 is equal to del v by del y and psi 2 is equal to del v by del x. तो मिलने थॉमसन मेथड का इंपॉर्टेंस समझ में आया आपको? क्या है मिलने थॉमसन मेथड से हम डायरेक्ट एफ ऑफ जेड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम देखेंगे, देखो कंस्ट्रक्ट एफ ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज गिवन। अब आप यहाँ पे इस तरह से ध्यान दो कि सपोज मिलने थॉमसन मेथड नहीं है हमारे पास, तो अगर हमको एफ ऑफ जेड कंस्ट्रक्ट करना है व्हेन यू इज गिवन, तो हम क्या जनरल मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब पहले v निकालेंगे, v निकालने के बाद फिर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखेंगे, और वो एफ ऑफ जेड किस टर्म में रहेगा? वो एफ ऑफ जेड रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, है ना। बट मिलने थॉमसन मेथड से कैसे प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होता है आप देखो यहाँ पे। व्हेन रियल पार्ट इज गिवन, सो व्हाट इज एफ ऑफ जेड? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन phi 1 एट z कॉमा 0 माइनस ऑफ I इंटीग्रेशन ऑफ phi 2 एट z कॉमा 0। सो व्हाट इज phi 1? del u by del x। ठीक है, so differentiate u with respect to x, so del over del x of u, that is e to the power x, x cos y minus of e to the power x, y sin y। now differentiate with respect to x, मतलब y is constant, तो आप यहाँ पे देखो ये cos y constant and x e to the power x को differentiate करना है with respect to x, so here applying product rule, first function derivative of second plus second function derivative of first। any doubt? Now in this second term, y sin y is constant and derivative of e to the power x is e to the power x। now no need to solve this further again because हमको phi 1 निकालना है at point z comma 0, so direct find phi 1 at point z comma 0 by substituting x is equal to z and y is equal to 0। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखो cos 0 z into e to the power z plus e to the power z minus of y is 0 sin 0 e to the power z। now sin 0 is 0, तो ये वाली पूरी टर्म हो गई 0, cos 0 is 1, so phi 1 की वैल्यू कितनी आ गई? z e to the power z plus e to the power z। ठीक है, similarly find phi 2,
del u by del y, so del u by del y of u. अब अपने को u को डिफरेंशिएट करना है with respect to y. So in this first term, x into e to the power x is constant with respect to y, and derivative of cos y is minus sin y, right? Now minus, अब जब हम सेकेंड टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो e to the power x is constant, y and sin y both functions are differentiable, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. First function y, derivative of sin y is cos y, plus second function sin y, derivative of y is 1, right? फिर से इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट z, 0. सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू 0. तो कितना आ गया देखो, माइनस ऑफ z e टू द पावर z sin 0, माइनस ऑफ e टू द पावर z 0 इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0. साइन 0 इज 0, इसलिए यहां से लेके यहां तक पूरी टर्म हो गई 0. तो फाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0. सो एफ ऑफ जेड है फॉर्मूला. सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फाई 1 कितना आया, जेड ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर जेड डी जेड माइनस ऑफ आई 0 डी जेड प्लस सी. सो z e टू द पावर z, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z i, 0 का इंटीग्रेशन सम कांस्टेंट c यहाँ पे यूज किया इसलिए c1 लिखा है यहाँ पे. सो i इंटू c1 प्लस c. सो f of z is equal to z e to the power z plus k, where k is the whole constant, c minus I c1, ये पूरा कांस्टेंट है इसलिए इसको k लिख दिया. So what is f of z, z into e to the power z. अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए, u दिया था हमको, u in terms of x y, without calculating v, क्या निकाला हमने, f of z. ठीक है. सिमिलरली अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे f of z when its imaginary part v is given. सो यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो कैलकुलेट phi 1. व्हाट इज psi 1, del v by del y, del over del y of v. Similarly psi 2 is equal to del v by del x, del over del x of v. ठीक है. अब यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप देखो पिछले इसमें with respect to y करना है. with respect to y means this numerator denominator both will differentiable, so यहाँ पे हमको quotient rule अप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ भी quotient rule अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. तो quotient rule अप्लाई करके इसका ये quotient rule अप्लाई किया हमने, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. इसको आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमको डायरेक्ट वैल्यू निकालना है z, 0 पे. So x is equal to 0, y is x is equal to z and y is equal to 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई माइनस अपॉन z. सिमिलरली phi 2, यहाँ पर भी क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे एट पॉइंट z, 0 सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर. नाउ व्हाट इज f of z, इंटीग्रेशन ऑफ psi 1 एट z0 प्लस I इंटीग्रेशन ऑफ psi 2 एट z0 प्लस c. सो f of z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आया है, psi 1 माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर dz प्लस I psi 2 कितना है, माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर dz प्लस c. So integration of minus 1 upon z square is 1 upon z I, and again its integration is 1 upon z plus c. So f of z is equal to 1 plus I upon z plus c. अब यहाँ पे देखो v दिया था, u हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट f of z कंस्ट्रक्ट कर दिया. तो ये एक जो है वो मिलने थॉमसन मेथड का इंपॉर्टेंस है. क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर. अब आगे के देखने के लिए सिंपली कनेक्टेड रीजन हम ये समझेंगे. अपने को देखना है एक्चुअली कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, उसके लिए हम कुछ रीजन समझेंगे. सो सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन सिंपली कनेक्टेड रीजन enclosed by a simple curve. ठीक है. So a curve having no self interaction is called simple closed curve, right? जैसे सर्कल,
इलिप्स, ये जो डायग्राम बना हुआ है वैसा, नॉट नेसेसरी कि सर्कल और इलिप्स ही सिंपल है, कुछ भी सिंपल कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता है, राइट? ऐसा कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। अब जो नेक्स्ट डायग्राम बना हुआ है वो देखो, वो सिंपल कर्व नहीं है। क्यों कर्व नहीं है? क्योंकि एरो से आपको समझ में आ रहा है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये इस डायरेक्शन से जा रहा है, आप देखो ये यहाँ से होते हुए इधर आ गया, मतलब इसने खुद को इंटरसेक्ट किया ना, ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, राइट? तो ये खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये देखो ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो सिंपली कनेक्टेड रीजन कौन सा होता है? ऐसा रीजन जो बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये देखो ये यहाँ पे बना हुआ है, ये सिंपल कनेक्टेड कर्व है, ये रीजन सिंपली कनेक्टेड रीजन, इसके अंदर का पार्ट, ये वाला पोर्शन इज नोन एज सिंपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है? अब आप इस पोर्शन को देखो, ये जो पोर्शन है, ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज नॉट सिंपली कनेक्टेड रीजन, क्योंकि अगर हम ये कर्व को कंसीडर कर रहे हैं, ये पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पोर्शन को बनाने के लिए हमको दो इस तरह के सर्कल ये राउंड शेप बनाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? डिस्क जैसा है ना ये पोर्शन हॉलो है, आप ऐसे कंसीडर करो तो ये वाला डिस्क पोर्शन है, ठीक? सो दिस टाइप ऑफ रीजन इज नोन एज मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, क्योंकि दो कर्व से बाउंडेड है ना, ये ग्रे कलर पार्ट is bounded by two different colors, so it is known as multiple connected region. This area is bounded by single curve, that's why it is called as simply connected region. This is multiple connected region. समझ में आ गया सबको? Now we can convert the multi-connected region into a simple connected region by giving it one cut or more cuts. कैसे? अब ये वाला पोर्शन देखो, ये एक आपको दिख रहा है, सिर्फ इस पोर्शन को अगर हमको कंसीडर करना है, सो दिस पोर्शन इज बाउंडेड बाय टू कर्व्स, एक आउटर कर्व और एक ये इनर कर्व, ठीक है? अब यहां से अगर हम इसको कट लगा दें इस तरह से, इधर से हमने ये वाले कर्व को कट किया, यहाँ से ये वाले कर्व को कट किया, और ये दो लाइन ज्वाइन कर दी, तो अब आप देखो ये जो कर्व है, ये जो इस तरह से दिख रहा है, ये वाला शेप, ये कर्व क्या बन गया? It is simply connected region because this area, this region is bounded by simple curve which does not intersect itself, right? आप इस तरह से देखो, ये जा रहा है, ये कहीं भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो जो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता है वो सिंपल कर्व, और ऐसा रीजन जो सिंपल कर्व से बाउंडेड है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब जैसे ये वाला देखो, ये जो आउटर कर्व दिख रहा है उसमें ये दो हॉलो है, आप ऐसा कंसीडर करो कि ये दो होल है इसमें, ये हॉलो पोर्शन, ठीक है? अब यहां से इसको कट करेंगे और इधर से इसको कट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये भी हो गया सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो जो मल्टी कनेक्टेड रीजन रहता है उसको हम कट करके सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉची रीमान कंडीशन सेटिस्फाई है। एनालिटिक फंक्शन मतलब कॉची रीमान कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कॉची रीमान कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, राइट ना? और डेरिवेटिव एग्जिस्ट है मतलब फंक्शन डिफाइंड है। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर हम पीछे पीछे जाएं, एनालिटिक का मतलब सीआर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सीआर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट है, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट है का मतलब क्या है? फंक्शन डिफाइंड है, तभी तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, मतलब फंक्शन डिफाइंड है। सो इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, कहाँ पे? इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, मतलब कोई एक क्लोज्ड कर्व है, उस कर्व के अंदर का पोर्शन और उस कर्व के मतलब ऑन दी कर्व जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन इज डिफाइंड
then integration of f of z dz along c is equal to 0. मतलब उस C के अंदर उस क्लोज्ड कर्व पे ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन एनालिटिक है, CR कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब उस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद इन दिस सर्कल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ दिया है, ये प्रूफ आपको देखने की मतलब अभी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो, इफ फंक्शन f of z is analytic inside and on a closed curve C, then integration along a closed curve C f of z dz is equal to 0, right? And Cauchy's integral formula, so if f of z is analytic within and on a closed curve C and A is any point within C, आप ये फॉर्मूला अच्छे से समझो, जब प्रॉब्लम करेंगे तो और क्लियर होगा आपको इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। If f of z is analytic within and on a closed curve C, मतलब ये जो f of z है ये एक क्लोज्ड कर्व C पे हर जगह डिफाइंड है, एंड A इज एनी पॉइंट विद इन C, A एक ऐसा पॉइंट है जो C के अंदर है। अब A कौन सा पॉइंट है जहां पे इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? आप ध्यान दो यहाँ पे z माइनस ए है ना, तो A is any point within C, then integral over closed curve C f of z upon z minus a dz is equal to 2 pi I into f of A. f of a का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ f of z at z is equal to e. ठीक है, so this is Cauchy's integral formula. If f of z is analytic within and on a closed curve C and A is any point within C, मतलब A के लिए कंपल्शन है कि वो पॉइंट C के अंदर ही होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन ओवर C f of z अपॉन z माइनस a dz is equal to 2 pi I f of a. ठीक है, now extension of Cauchy's integral formula, if f of z is analytic within and on a closed curve C and A is any point within C, then integration over closed curve C f of z upon z minus a to the power n plus 1 dz is equal to 2 pi I upon factorial n, nth order derivative of f of z at z is equal to e. क्लियर? ये दो फॉर्मूला है और थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका मतलब क्या है वो याद रखना है आपको, और ये दो फॉर्मूला। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स हम डिसाइड करेंगे, डिफाइंड करेंगे। जीरो सिंगुलर पॉइंट क्या रहते हैं, तो ये आप अच्छे से देखो फिर आगे। जीरोस ऑफ फंक्शन, a zero of an analytic function is that value of z at which f of z is equal to 0. क्या मतलब है? इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, तो 0 मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पे पूरा फंक्शन क्या हो जाता है? 0। ठीक है, a zero of analytic function is that value of z for which f of z is equal to 0. क्लियर? नेक्स्ट सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? पोल। So singular point मतलब क्या होता है? A singular point or pole of an analytic function is that value of z at which function is not analytic. अब फंक्शन नॉट एनालिटिक का मतलब क्या हुआ? फंक्शन एनालिटिक नहीं है मतलब CR कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो 0 का मतलब जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द फंक्शन, और जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं रहता मतलब फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट और पोल और सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब कितने टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, सिंगुलैरिटीज होती हैं? तो आप पहला यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है मैंने वो देखो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 4। अगर ये फंक्शन है और इसका सिंगुलर पॉइंट हमको निकालना है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1, तो सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है? जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये एफ ऑफ जेड किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा? ओनली एट जेड इज इक्वल टू 4। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज एट जेड इज इक्वल टू 4 डिनोमिनेटर इज 0 एंड हेंस फंक्शन टेंड टू इंफिनिटी, राइट ना? तो z इज इक्वल टू 4
क्या है, सिंगुलर पॉइंट है फंक्शन का, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्या फंक्शन पॉइंट है, सिंगुलर, एंड z इज इक्वल टू 4 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज नोन एज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। सिर्फ एक अकेला है, z इज इक्वल टू 4, मतलब f ऑफ z इज नॉट डिफाइंड ओनली एट सिंगल पॉइंट z इज इक्वल टू 4, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सेकेंड टाइप का फंक्शन देखो, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 3 z माइनस 5 है सपोज, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, मतलब z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। ठीक है, f ऑफ z डिफाइंड कहां पे नहीं होगा, 3 पे भी डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि z इज इक्वल टू 3 पे भी डिनोमिनेटर 0 है, 5 पे भी डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि z इज इक्वल टू 5 पे भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन टू डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है, z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। तो f ऑफ z की कितने सिंगुलर पॉइंट हो गए यहाँ पे, 2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पोल। सिंपल पोल का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू एक बार, z इज इक्वल टू 3 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, z इज इक्वल टू 5 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो इसलिए ये होते हैं सिंपल पोल। अच्छा अब आप ध्यान दो, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट इज ऑल्सो अ सिंपल पोल, बिकॉज z इज इक्वल टू 4 appears only at once, right? So z is equal to 4 singular point, simple point, isolated point, because z is equal to 4 is the only value। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, z इज इक्वल टू 3 एक बार आ रहा है, z इज इक्वल टू 5 एक बार आ रहा है, बट z इज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट आइसोलेटेड, दीज आर नोन एज जस्ट सिंपल पोल, राइट। अब आप तीसरे टाइप का पोल देखो, तो तीसरे टाइप का फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 4 होल क्यूब। So this function is not defined when denominator is equal to 0. Denominator is equal to 0, that means z minus 4 whole cube is equal to 0, and therefore z is equal to 4, 4, 4. 4 वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है, बट इसका डिग्री कितना है, 3, मतलब z is equal to 4 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। सो दिस टाइप ऑफ पोल इज नोन एज मल्टीपल पोल। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर मतलब रिपीटेशन, वो पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे z इज इक्वल टू 4 कितनी बार आया है, कितनी डिग्री है उसकी, 3, मतलब 3 बार आएगा, इसलिए ये कौन सा पोल हो गया, मल्टीपल पोल ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर, तो फर्स्ट वाला देखो, दिस इज आइसोलेटेड पोल, सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड पोल, this is simple also, second one is simple pole, and this type of poles are known as multiple pole of order n, n मतलब number of repetitions। clear, अब हम पहला प्रॉब्लम देखेंगे, evaluate integral over closed curve c 3z square plus 1 upon z square minus 1 dz where c is a circle mod z is equal to 2। इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है बाय यूजिंग कॉचीज फॉर्मूला। तो कॉचीज फॉर्मूले में क्या होता है, आप ध्यान दो, फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर विद इन एंड ऑन अ सी। तो सबसे पहले हमको सी देखना पड़ेगा कि सी क्या है, तो सी क्या है, सर्कल, कौन सा सर्कल है, मॉड जेड इज इक्वल टू 2, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, सो मैग्नीट्यूड ऑफ x plus iy is equal to 2, and what is the magnitude of complex number, under root of square of real part plus square of imaginary part, मतलब x square plus y square is equal to 2, and यहाँ से on squaring both side we get x square plus y square is equal to 2 square, ये मिलेगा, x square plus y square is equal to 2 square, मतलब ये क्या है, it is a circle whose center at origin and radius is 2। तो हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, ये देखो, ये सर्कल, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,0, ये 0,2, ये -2,0, ये 0,-2, इतना क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे हम इसको एक्स एक्सिस नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। क्यों रियल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि z इज इक्वल टू क्या रहता है, x प्लस आई वाई, व्हाट इज x, x is real part, therefore horizontal axis is known as real axis।
Y is imaginary part of Z. So this vertical axis is known as imaginary axis. And this plane is known as complex plane. This is known as complex plane, Z plane. तो Z plane जिसमें ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर लोकेटेड एट ओरिजिन विथ रेडियस 2. इतना क्लियर? ओके. अब अगर आप पिछली स्लाइड पे जाके कॉचीज फॉर्मूला देखते हो तो यहाँ पे देखो क्या है, एफ ऑफ जेड अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा था. और ये वाला जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे होना चाहिए, विद इन सी. कहाँ होना चाहिए, विद इन सी. तो अपने पास डिनोमिनेटर में क्या है, जेड स्क्वायर माइनस वन, तो हम क्या निकालेंगे, पोल्स. इस पूरे फंक्शन का क्या निकालना है अपने को, पोल्स. पोल्स मतलब क्या होते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो, मतलब जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएंगी वैल्यू, प्लस वन माइनस वन. नाउ जेड इज इक्वल टू प्लस वन. अब z की वैल्यू प्लस वन, मतलब पॉइंट कौन सा हुआ, तो z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई. एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू वन, मतलब x इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू जीरो. तो पॉइंट क्या हो गया, वन कॉमा जीरो. सिमिलरली z इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब पॉइंट कौन सा हुआ, माइनस वन कॉमा जीरो. ठीक है, ये फंक्शन था. सी ये था, सबसे पहले हमने सी को ड्रॉ किया, उसके बाद हमने निकाला पोल्स. अब अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी. अगर बाहर है तो उस पॉइंट को हमको कोई मतलब नहीं, उससे कुछ काम नहीं है, अंदर ही होना चाहिए. सो z इज इक्वल टू वन, मतलब वन कॉमा जीरो. तो वन कॉमा जीरो कहाँ पे रहेगा, आप देखो, x coordinate is 1, y coordinate is 0, and because of radius is 2, 1 comma 0 lies inside the circle. Z is equal to minus 1, that means minus 1 comma 0. So minus 1 comma 0, this point also lies in within the circle because radius is 2. So from origin to left side this distance is 2, from origin to right side this distance is 2. So 1 comma 0 minus 1 comma 0 both point lies within the curve, within the circle. ठीक है, therefore Cauchy's integral formula is applicable on both the points. So integral over closed curve C 3z square plus 1 upon z square minus 1. तो एक बार हम z माइनस वन डिनोमिनेटर में रखेंगे, एक बार z प्लस वन. इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, z स्क्वायर माइनस वन, ये z प्लस वन z माइनस वन. तो एक बार हम z माइनस वन रखेंगे, एक बार z प्लस वन रखेंगे. तो यहाँ पे f ऑफ z क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर प्लस वन अपॉन z प्लस. सेकेंड f ऑफ हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस वन अपॉन z माइनस वन. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 पाई आई f of z at point z is equal to 1. Similarly here 2 pi z f of z at point z is equal to minus 1. Now substitute in the first term z is equal to 1 and z is equal to minus 1 in second term. Calculate it, it is equal to 0. So what is the value of this integration? It is equal to 0. Right? एक और प्रॉब्लम देखते हैं. Evaluate z plus 4 upon z square plus 2z plus 5 where c is the circle, z plus 1 is equal to 1. ठीक है, तो सबसे पहले हमको c को ही देखना पड़ता है हर बार कि एक्चुअली c क्या है. पोल्स उसके बाद में देखेंगे कि वो c के अंदर है या आउटसाइड है. ठीक है, तो सबसे पहले c क्या दिया हुआ है यहाँ पे, mod of z plus 1 is equal to 1. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z. z की वैल्यू यहाँ पे रखी, क्या आया देखो, x प्लस आई वाई प्लस वन. z मतलब x प्लस आई वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन. अब ये जो वन है दैट इज रियल पार्ट, इसलिए इसको हमने x के साथ क्लब किया. यहाँ पे अगर इमेजिनरी पार्ट रहता तो उसको हम y के साथ क्लब करते. ठीक है, so x plus I plus Iy is equal to 1. Mod of this complex number is equal to 1 and magnitude of mod function is under root of x plus 1 whole square plus y square is equal to 1. And on squaring both sides, we get x plus 1 whole square plus y square is equal to 1 square. That means this is a circle, center located at minus 1 comma 0 and radius is 1. तो एक सर्कल बनाया,
जिसका सेंटर है -1, 0, रेडियस है 1, मतलब ये डिस्टेंस है 1, तो -1 से एक डिस्टेंस पीछे जाएंगे, एक यूनिट पीछे जाएंगे, तो ये हो गया 0, 0। सो दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया -1, 0 इसका सेंटर। रेडियस 1 है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हुआ 1, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2, 0। ठीक है। नाउ पोल्स, पोल्स निकालना है। पोल्स मतलब क्या होता है, जहां पे डिनोमिनेटर 0, सो z² + 2z + 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन z इज इक्वल टू -1 + -2। -1 + -2i. So -1 + 2i and -1 - 2i. So when z is equal to -1 + 2i, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट इज -1, y कोऑर्डिनेट इज 2, so -1, 2 and -1 - 2i again -1, -2। अब इन दो पॉइंट्स को हमको देखना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इनका लोकेशन कहाँ है। तो फर्स्ट -1, 2, x कोऑर्डिनेट इज -1, y कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब ऑब्वियसली ये सर्कल के बाहर ही रहेगा, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस है 1, मतलब फ्रॉम सेंटर टू टॉप दिस डिस्टेंस इज 1, सो -2 कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड द सर्कल। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट -1 - 2, ये भी कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड द सर्कल। ये समझ में आ रहा है आपको, मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड at two different points and both the points lies outside the circle। इसका मतलब क्या हुआ, the function is analytic everywhere within and on a closed circle, therefore according to Cauchy's integral formula the value of this integration is 0। क्लियर। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम यही है कि अगर फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, हर जगह डिफाइंड है, फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, सो इंटीग्रेशन इज 0। अब हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देखा ना, दो सिंगुलरिटीज थी, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट टू डिफरेंट पॉइंट बट बोथ द पॉइंट्स लाइज आउटसाइड, therefore function is defined everywhere within and on a curve C, so that's why integration is 0। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व C e to the power z upon z plus 1 whole square where C is the circle, z minus 1 is equal to 3। ये इस बिल्कुल सेम प्रॉब्लम गेट में आते हैं। इवेल्युएट दिस विद इन C। सो फर्स्ट z minus 1 is equal to 3, z मतलब x की वैल्यू रखेंगे, x plus iy, so x plus iy minus 1 is equal to 3। अब यहाँ पे फिर से आप ध्यान दो, -1 इज रियल पार्ट, सो क्लब विथ x, so it is x minus 1 plus iy is equal to 3 and magnitude of complex number is equal to square root of real part plus square of imaginary part, so x minus 1 whole square plus y square is equal to 3। add on squaring both side, x minus 1 whole square plus y square is equal to 3 square। सो x minus 1 whole square plus y square, मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है, 1, 0 पे, एंड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है, मतलब रेडियस कितना है, 3। ठीक है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर कहाँ पे है, 1, 0, 1, 0 पे सेंटर है, ये सेंटर है, मतलब ये हो गया रेडियस, ये डिस्टेंस कितना है, 3, और ये डिस्टेंस 3 है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4, 0। आपको स्क्रीन पे आप एरो दिख रहा है, ऐसे ही -1, 0 से 3, ये भी डिस्टेंस कितना है, 3, तो आप +1, 1 है, 1 पे है, आपको 3 स्टेप्स पीछे जाना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -2, 0, और ये क्या हो जाएगा, 0, 0। दिस इज ओरिजिन पोल। सो इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, ये हमने बनाया सर्कल, और ये है इसका सेंटर। अब हमको क्या देखना है, इसके पोल्स। पोल्स मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है मतलब डिनोमिनेटर 0, सो z plus 1 whole square is equal to 0,
z इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1। आप ध्यान दो यहाँ पे दो बार आया है, z इज इक्वल टू -1 तो इसका लोकेशन हमको देखना है पहले कहाँ है। z इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या हो जाएगा, -1, 0। सो -1, 0 कहाँ पे रहेगा, इनसाइड द सर्कल, बिकॉज ये एक्सट्रीम पॉइंट ये -2 है, तो ऑब्वियसली -1 इसके अंदर रहेगा। सो -1, 0 और z इज इक्वल टू -1 लाइज विद इन दी सर्कल एंड z इज इक्वल टू -1 दो बार आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज मल्टीपल पोल ऑफ ऑर्डर 2। सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, मल्टीपल पोल दो बार आ रही है, इसलिए इसका ऑर्डर 2। सो z इज इक्वल टू -1 इज अ मल्टीपल पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, मल्टीपल पोल वाला, जो कॉचीज का फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of z। So 2 pi I upon 1 factorial first order derivative of f of z मतलब e to the power z at z is equal to -1. So 2 pi I derivative of e to the power z is e to the power z at z is equal to -1. So substitute z is equal to -1. So the value of this complex integration is equal to 2 pi I e to the power -1. ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर बार अपन क्या करते हैं कि सर्कल 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 ही नहीं रहता, कुछ भी रह सकता है क्लोज्ड कर्व। सो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन वेयर c इज द बाउंड्री। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, c इज द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर्स विथ वर्टाइसेस 2, -2, 2i एंड -2i। ठीक है, नाउ z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 2 मतलब पॉइंट कौन सा हो गया, 2, 0। z इज इक्वल टू -2, -2, 0। z इज इक्वल टू 2i, 0, 2। x कोऑर्डिनेट 0 है, y तो ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, ये 2 है। z इज इक्वल टू 2i, that means 0, 2 and z is equal to -2i, that means 0, -2। तो ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे दिया हुआ है ना c is the boundary of square, तो यहाँ पे हमने इन 4 पॉइंट्स को जाते हुए एक स्क्वायर बनाया with 4 points are vertices। ठीक, तो ये बन गया हमारा कर्व। अब हमको निकालना है पोल्स। पोल मतलब डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर क्या है, z माइनस आई होल क्यूब। So z minus I whole cube is equal to 0. That means z is equal to I. Z is equal to I. 3 times आ रहा है, means it is a multiple pole of order 3. ठीक है, and z is equal to I is the point 0, 1. Z is equal to I is the multiple point of order 3 and z is equal to I मतलब 0, 1। 0, 1 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1। बिकॉज ऑफ ये ओरिजिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो 1 यही रहेगा ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया सिंगुलर पॉइंट। अब आप देखो ये जो C पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो विद इन C है, मतलब कॉचीज फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, नाउ अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला, यहाँ पे आप देखो f ऑफ z क्या है, z क्यूब प्लस साइन z है ना। सो 2 पाई आई अपॉन 2i सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z क्यूब प्लस साइन z एट z इज इक्वल टू i। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल, पाई आई फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करो तो 3z स्क्वायर प्लस कॉस z, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 6z माइनस साइन z and z is equal to I substitute करेंगे तो pi I 6i minus sin I। So the value of integration is minus of 6 pi minus pi I sin I। This is the value of integration। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। Evaluate this function where c is 4x square plus y minus 2 whole square is equal to 4। ठीक,
अब C क्या है, ऐसे क्या समझ में आ रहा है, सर्कल भी है क्या, लग तो नहीं रहा, कुछ और है क्या मालूम नहीं, देखते हैं अपन क्या है। ठीक है, तो देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 से डिफरेंशिएट 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. So x square upon 1 square plus y minus 2 square upon 2 square is equal to 1. This is standard form of ellipse. So ये क्या है, ellipse. ठीक है, अब हम निकालेंगे पोल्स. पोल्स मतलब z square plus 4 is equal to 0. So z is equal to 2i and z is equal to minus of 2i. So poles are 0, 2 and 0, minus 2. Right? So draw first C and then locate these 2 points and check whether these 2 points are inside or outside the curve. So this is ellipse. Clear? Now z is equal to 2i. Z is equal to 2i means 0, 2 lies inside this curve and z is equal to minus of 2i lies outside the curve, matlab 0, minus 2. ये outside है. Is clear? So Cauchy's formula is applicable only on z is equal to 2i. Therefore, integral over closed curve C 1 upon z square plus 4 dz is equal to 1 upon z minus 2i z plus 2i, and because of z is equal to 2i lies inside, z upon 2i को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, बाकी पूरे फंक्शन को हमने लिख लिया न्यूमरेटर में. So it is 1 upon z plus 2i dz and apply Cauchy formula. So it is 2 pi I 1 upon z plus 2i at z is equal to 2i. Now substitute z is equal to 2i. Simplify this. So pi by 2 is the value of integration. Clear? So हो गया. क्लास चल रही, फोटो लेने आए हम लोग. So next is expansion of the function. ठीक है, फंक्शन एनालिटिक समझ में आ गया. एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ये क्लियर हो गया. अब हम देखेंगे एक्सपांशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो पहले टेलर्स थ्योरम. इफ f of z is analytic inside the circle C with center at z is equal to a, then for z inside C, we can expand f of z as f of z is equal to f of a plus z minus a f dash a plus z minus a whole square upon factorial 2 f double dash at point A plus z minus a whole cube upon factorial 3 ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव एट ए एंड सो ऑन. ये स्टेटमेंट को आपको समझना है. ये तो बहुत सिंपल है बेटा, ये इसमें से कुछ नहीं. इसका मतलब क्या है समझ में आना चाहिए. इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, कहाँ पे, इनसाइड अ सर्कल सी. इनसाइड द सर्कल सी, एक सर्कल के अंदर फंक्शन एनालिटिक है वेयर ए इज द सेंटर, जेड इज इक्वल टू ए इज द सेंटर, then we can expand f of z around C, around A, point A, as f of z is equal to this is. ठीक है, तो expand log of 1 plus z about z is equal to 0 by using Taylor's expansion. तो देखो ये टेलर्स एक्सपांशन का स्टेटमेंट है. तो एक्सपांशन करने के लिए हमको क्या लगता है, फंक्शन, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अबाउट दी सेंटर. अब यहाँ पे सेंटर क्या दिया हुआ है अपने को, z इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम सारे डेरिवेटिव्स किस पॉइंट पे निकालेंगे, z इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो f ऑफ z इज log of 1 plus z. Its first order derivative 1 upon 1 plus z. Second order derivative minus 1 upon 1 plus z whole square. Third order 2 upon 1 plus z whole cube. फोर्थ ऑर्डर इस तरह से हमने लिखा. अब ये सारे वैल्यूज हमको निकालना है एट पॉइंट z इज इक्वल टू 0. एट पॉइंट z इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 0, f डैश 0 1, डबल डैश 0 minus 1, ट्रिपल डैश 0 2, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव minus 6. ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यू इन द एक्सपांशन. ये हो गया एक्सपांशन.
एफ ऑफ 0, एफ डैश 0, डबल डैश 0, इस तरह से आएगा। अब log of 1 plus z 0, substitute these derivatives and expand. This is the expansion of log of 1 plus z, right? It's very simple. Expansion एकदम easy है, मेन चीज आपको क्या समझनी है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम से और आपको क्लियर होगा। एक्सपांड 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस z माइनस 6 अबाउट z इज इक्वल टू -1। यहाँ पे किस पॉइंट के अबाउट हमको एक्सपांड करना है? -1, मतलब z इज इक्वल टू -1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। बाय यूजिंग टेलर्स एक्सपांशन ऑल्सो फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है ये बाद में पता चलेगा, पहले हम इसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपांड करने के लिए हमको क्या लगेंगे? डेरिवेटिव्स। सो उसके पहले भी आप फंक्शन को देखो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड माइनस ऑफ 6। इसको जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा, बट सेकेंड ऑर्डर से हमको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हर बार क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके पूरा का पूरा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे मतलब क्या करेंगे? 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 6, इसको हमने फैक्टराइज किया, जेड माइनस 3 जेड प्लस 2, और इस फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर दिया, एकदम सिंपल। तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन जेड माइनस 3 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2, इस तरह से फंक्शन क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब आप देखो एफ ऑफ जेड 1 अपॉन 5 ये है, so f dash 1 upon 5 minus 1 upon z minus 3 whole cube minus 1 upon z plus 2 whole square. F double dash direct 2 upon z minus 3 whole cube, 2 upon z plus 2 whole cube. No need to apply quotient rule or product rule or whatever. Function अगर simplify हो गया तो सारे उसके डेरिवेटिव हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इस टर्म को हमको, इस फंक्शन को हमको एक्सपांड करना है अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू -1, तो सारे डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे z इज इक्वल टू -1। सो एट z इज इक्वल टू -1, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन इज -1/4, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3/16। इस तरह से हमने ये सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाली एट z इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये हो गया टेलर्स एक्सपांशन, इसमें हम सारी वैल्यूज रखते हैं, ठीक, सारी वैल्यूज रखेंगे और एक्सपांड करेंगे। ए मतलब क्या है? -1, तो ये हो जाएगा z प्लस 1, z प्लस 1 होल स्क्वायर, z प्लस 1 होल क्यूब एंड ऑल द डेरिवेटिव्स। So substitute all the derivatives and simplify this. This is expansion of the function about the point z is equal to -1. Clear? Okay. अब इसका हम समझेंगे कन्वर्जेंस क्या है। तो f of z क्या था? 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 6, राइट। इसका हम निकालेंगे पोल्स। पोल्स मतलब where function is not defined, मतलब denominator is equal to 0, so z square minus of z minus 6 is equal to 0, so z minus 3 z plus 2 is equal to 0, right? That means z is equal to 3 and z is equal to -2. These are two poles, ठीक है। अब फंक्शन को हमको किस पॉइंट के अबाउट एक्सपांड करना था? z इज इक्वल टू -1, मतलब z इज इक्वल टू -1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे नंबर लाइन दिख रही होगी, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे z इज इक्वल टू -1 हम ड्रॉ करेंगे बिकॉज दिस इज द सेंटर। फिर जो दो पोल्स आए हैं उनको लोकेट करो, z इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू -2, बराबर। अब इस सेंटर का मतलब -1 का 3 से डिस्टेंस क्या है? आप देखो 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स हो गया डिस्टेंस। -2 से कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट, ठीक है। टेलर्स थ्योरम के एक्सपांशन में हमने क्या लिखा? टेलर्स थ्योरम का एक्सपांशन क्या था? f of z is analytic within C. f of z is analytic everywhere within C. मतलब C सर्कल के अंदर f of z हर जगह एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक होना चाहिए मतलब फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर।
अब आप ध्यान दो, जब हम z इज फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, -1 को सेंटर मानकर हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, और ये जो फंक्शन है ये किन दो पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है, -2 पे डिफाइंड नहीं है और 3 पे डिफाइंड नहीं है। तो हमको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे इतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है कि -2 भी उस सर्कल के बाहर आएगा और 3 भी उस सर्कल के बाहर आएगा। ठीक है, तो -2 से डिस्टेंस कितना है, -1 का 1 यूनिट का, मतलब सर्कल का रेडियस 1 से कम रखना पड़ेगा। ये आपको बात समझ में आ रही, तभी तो -2 उसके बाहर रहेगा। और जब हम 1 से कम रखेंगे सर्कल का रेडियस, तो 3 तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, right? Therefore the function f of z will be analytic inside and on this circle with radius less than 1. Clear? तो यहाँ पे देखो, if we consider the circle C with center z is equal to -1 and the radius less than 1, that is mod of z plus 1 is less than 1, then the function f of z will be analytic inside and on us on the circle. Clear? So f of z का Taylor's expansion about the point z is equal to 1 is possible only when the radius is less than 1. Clear? So the region of convergence is mod of z plus 1 is less than 1. Z plus 1 कहाँ से है, z is equal to -1 is the center ना, so z plus 1 is less than 1. ये जो distance है वो 1 से कम होना चाहिए. Is clear? So region of convergence clear अच्छे से सबको? Next is Lorentz expansion. और Lorentz expansion के लिए दो एक्सपांशन हमको बहुत लगते हैं. 1 plus x whole inverse is equal to 1 minus x plus x square minus x cube plus up to so on when magnitude of x is less than 1, and 1 minus x inverse is equal to 1 plus x square plus x cube plus up to so on when mod of x is less than 1. ठीक है, ये दोनों एक्सपांशन हम यूज करेंगे. तो अब हमको समझना है कि लॉरेंट्स एक्सपांशन क्या है. पहले हमने टेलर समझा. टेलर्स एक्सपांशन कहाँ पे पॉसिबल होता है, विद इन एंड ऑन अ सर्कल. ठीक है, जहां पे फंक्शन एनालिटिक है. लॉरेंट्स एक्सपांशन देखो, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द रिंग शेप्ड रीजन आर. यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है सबको, रिंग शेप्ड रीजन बना हुआ है. इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द रिंग शेप्ड रीजन आर bounded by two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2, where R1 is greater than R2, with center at A. ठीक है, f of z एनालिटिक है. कहां पे एनालिटिक है, रिंग शेप्ड रीजन में एनालिटिक है, जहां पर जो रिंग शेप्ड रीजन बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ रेडियस R1 R2. ठीक है, और इसका सेंटर क्या है, A. Then f of z is equal to a naught plus a1 z minus a plus a2 z minus a whole square plus up to so on, and in the second bracket plus b1 upon z minus a plus b2 upon z minus a whole square plus up to so on, where an is equal to 1 upon 2 pi I integral over closed curve C1 f of z upon z minus a to the power n plus 1 dz, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 up to so on, and bn is equal to 1 upon 2 pi I integral over C2 f of z upon z minus a to the power minus n plus 1 dz, where n is equal to 1, 2, 3 up to so on. Clear? सो लॉरेंट्स एक्सपांशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए. तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है पार्शियल फ्रैक्शन का, किस तरह से है. when degree of denominator should be greater than degree of numerator, this is the first basic criteria to reduce any fraction into partial fraction. Then reduce the denominator into real and linear factors. So when function is f of x upon x minus a x minus b type, then this type of partial fraction is possible. इस तरह से मैंने दिया हुआ है, आप
मालूम है आप सब लोगों को, देख सकते हो, व्हेन सम फैक्टर्स आर रिपीटेड x माइनस बी होल स्क्वायर, देन एक बार x माइनस बी लेंगे, सेकेंड टाइम x माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरह से. नाउ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर when function is quadratic whose linear factors does not exist, so ax plus b upon x square plus a square, इस टाइप का हम लेते हैं. तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक आइडिया है, आप सब लोगों को मालूम है, बट फिर भी. अब देखो पहला प्रॉब्लम, एक्सपांड f of z is equal to 1 upon z minus 1 z minus 2 in the region when mod of less than 1, second region when mod of z lies between 1 and 2, and third region when mod of z is greater than 2. This is mod z is greater than 2. ठीक है. So first simplify the function. f of z is equal to 1 upon z minus 1 z minus 2. इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस किया, इट्स पार्शियल फ्रैक्शन इज माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2. सो अब पहला रीजन लेते हैं, मॉड z इज लेस देन 1. यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है, तो एक का डिनोमिनेटर है z माइनस 1, एक का डिनोमिनेटर है z माइनस 2. मतलब z को हमको कंपेयर करना है एक बार 1 से, और यहाँ पे z को कंपेयर करना है एक बार 2 से. ठीक है. सो क्यों हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमको ये दोनों रिजल्ट यूज करना है, दोनों में से जो भी एप्लीकेबल रहेगा वो रिजल्ट हमको यूज करना है. तो ये जब रिजल्ट हमको यूज करना है, इसके लिए कंडीशन क्या है, मॉड x इज लेस देन 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए. इसलिए हम ये जो प्रोसेस है वो करेंगे. तो ये हो गया फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन. एंड द फर्स्ट रीजन इज मॉड z इज लेस देन 1. व्हेन मॉड z इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 2 आल्सो. सो मॉड z इज लेस देन 2 आल्सो. तो f ऑफ z यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इज z माइनस 1, मतलब यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, 1, तो हमेशा बड़ी क्वांटिटी को हम कॉमन निकालेंगे. व्हेन मॉड z इज लेस देन 1, मतलब 1 इज ग्रेटर देन z, मतलब z इज द लेस क्वांटिटी, सो 1 माइनस z. z इज लेस देन 2, मतलब यहाँ पे अब बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, माइनस 2, तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया. तो माइनस 2 कॉमन आएगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस z अपॉन 2, राइट. नाउ हियर माइनस वन कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस z, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस z इनवर्स. ओके, देन इट इज माइनस 1 बाई 2, दिस इज 1 माइनस z बाई 2 इनवर्स. ठीक है. एंड डायरेक्ट अप्लाई दी स्टैंडर्ड फॉर्म. जब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप देखो z इज लेस देन 1, यहाँ पे भी आया z माइनस 2, 2 इज ग्रेटर देन z, मतलब z माइनस 2 इज लेस देन 1, सो z माइनस 2 इज ऑल्सो लेस देन 1. देयरफॉर जो रिजल्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, दीज टू रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल. ठीक है. So 1 minus z inverse is 1 plus z square plus up to so on minus 1 upon 2, मतलब 1 plus z by 2 plus z by 2 square plus z by 2 whole cube plus up to so on. So this is the expansion of the given function in the region mod z is less than 1 by using Lorentz expansion. ठीक है. अब हम सेकेंड रीजन देखते हैं. सेकेंड रीजन इज मॉड z लाइज बिटवीन 1 एंड 2, मतलब मॉड z 1 एंड 2 के बीच में है. मॉड z इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2. सो f ऑफ z का पार्शियल फ्रैक्शन क्या आया था, सिंप्लीफिकेशन, माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2. सो यहाँ से z और 1 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, z, इसलिए यहाँ कॉमन आया z. सो 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस z और 2 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, 2, इसलिए कॉमन आया 2 माइनस 2. सो 1 माइनस z बाई 2. नो माइनस 1 अपॉन z, 1 माइनस 1 अपॉन z इनवर्स एंड माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस z बाई 2 इनवर्स. क्लियर. एंड डायरेक्ट अप्लाई द रिजल्ट. सो माइनस 1 अपॉन z एज इट इज. अब यहाँ पे x मतलब क्या है, 1 अपॉन z. सो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. यहाँ माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस z बाई 2 इनवर्स, यानी 1 प्लस z बाई 2 प्लस z बाई 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन. So this is again the expansion of same function, but the region is different, where mod z lies between 1 and 2. ठीक है. Now next region when mod z is greater than 2. Mod z is greater than 2, and when mod z is greater than 2, it is automatically greater than 1. ठीक.
So f of z is minus 1 upon z minus 1 plus 1 upon z minus 2. So z और 1 को कंपेयर करो, बड़ी क्वांटिटी कौन सी है z, तो यहाँ से भी कॉमन आएगा z, और जब z और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं तब भी बड़ी क्वांटिटी कौन सी है z, तो यहाँ से भी कॉमन क्या आएगा z. So z is common, so minus 1 upon z, 1 minus 1 upon z inverse, plus 1 upon z, 1 minus 2 upon z inverse, and direct apply the result. Minus 1 upon z, 1 plus 1 by z, 1 by z square, 1 by z whole cube, plus 1 upon z, 1 plus 2 by z, 2 by z whole cube, plus 2 by z whole square plus whole cube, and up to so on. So expansion of the same function in the different region. Clear? Next देखो, find the Laurent series expansion of the function, but region is z plus 2 lies between 3 and 5. Mod of z plus 2 lies between 3 and 5. So f of z is z square minus 6z minus 1 upon z minus 1, z minus 3, z plus 2. So first reduce this fraction into partial fraction. इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस किया, ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन z माइनस 3 प्लस 1 अपॉन z प्लस 2. अब जो कंडीशन हमको दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, कंडीशन क्या दी हुई है, z प्लस 2 लाइज बिटवीन 3 एंड 5. z प्लस 2 लाइज बिटवीन 3 एंड 5. z मालूम नहीं हमको क्या है, z प्लस 2 दिया है, इसलिए हम हर जगह z प्लस 2 लाएंगे, ठीक है. जैसे पहले इसमें देखो z माइनस 1 है तो हमने यहाँ पे 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया z प्लस 2 माइनस 3. एनी डाउट? Then next term is z minus 3 is there, so again add 2 subtract 2, तो ये हो गया z plus 2, 2 subtract करेंगे तो हो गया z plus 2 minus 5. एंड लास्ट टर्म z plus 2, तो z plus 2 ही है, वैसे ही रिक्वायर्ड है, उसको वैसे का वैसे ही रखेंगे, ठीक है. Now we have to expand the function in the region when mod of z plus 2 lies between 3 and 5, or we can say that mod of u lies between 3 and 5 where u is equal to z plus 2. Clear? अब फंक्शन देखो क्या हो गया, f of z, उसको हमने z plus 2 के फॉर्म में एडजस्ट किया था और z plus 2 को हमने क्या सब्सटीट्यूट किया है, u, तो ये हो गया 1 upon u minus 3 minus 1 upon u minus 5 plus 1 upon u. क्लियर? एकदम सिंपल. अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज mod of u lies between 3 and 5 means u is greater than 3 but less than 5. So u minus 3, यहाँ u और 3 को कंपेयर करो तो यहाँ u और 3 में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, u, इसलिए यहाँ से हमने u कॉमन लिया. So 3 by u is less than 1. u and 5 में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, 5, इसलिए माइनस 5 कॉमन लिया, तो 1 माइनस u by 5, ठीक है. तो ये हो गया 1 अपॉन u by u इनवर्स प्लस ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन 5, 1 minus u by 5 inverse plus 1 upon u, and direct apply the result. 1 plus 3 upon u square, 3 upon u cube plus 1 upon 5, 1 plus u by 5 square, u by 5 whole cube plus 1 upon, plus up to so on, and plus 1 upon u. This is the expansion. But u को in terms of z हम substitute कर देंगे, तो f of z is equal to 1 upon z plus 2, 3 by z plus 2, 3 by z plus 2 whole square, and same here z plus 2 by 5 z plus 2 whole square plus 1 upon z plus 2. So this is expansion of the given function in the region when mod of z plus 2 lies between 3 and 5. ठीक है. एक और प्रॉब्लम देखो, Laurent series expansion f of z is equal to z square minus 1 upon z plus 3 z plus 2. In the region when mod z less than 2 and when mod z lies between 2 and 3. So first reduce this fraction into partial fraction, and what is the first rule?
first rule is degree of denominator should be less than degree of numerator, but here degree of denominator is 2, degree of numerator is also 2. तो सबसे पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं 12 by 3 डिवाइड करेंगे, 12 by 5 जैसे डिवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे। Here the dividend is z square minus 1, z square plus 5z plus 6 is the divisor। अब यहाँ पे इसकी डिग्री दोनों की डिग्री सेम है, तो 1 इज द कोशेंट, 1 से डिवाइड करेंगे, देखो z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 माइनस, सो z स्क्वायर कैंसिल, 5z माइनस एंड दिस माइनस 6 माइनस 1 हो गया माइनस 7। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्लियर? ऐसे ही लिखते हैं। सपोज 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 13 बाई 2 को हम ऐसा लिखते हैं ना, 6 इंटीजर प्लस 1 बाई 2, बिल्कुल वैसे ही 1 इज द कोशेंट, 1 इंटीजर प्लस माइनस 5z माइनस 7 अपॉन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। एनी डाउट? ओके। अब f ऑफ z जो इस फॉर्म में था z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z प्लस 3 z प्लस 2, वो किस फॉर्म में हो गया, 1 प्लस माइनस 5z माइनस 7 अपॉन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। अब आप सिर्फ इस फ्रैक्शन को देखो, सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, एंड नाउ वी कैन रिड्यूस दिस फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे, तो f ऑफ z कितना हो गया, 1 प्लस 3 अपॉन z प्लस 2 माइनस 8 अपॉन z प्लस 3, राइट? एंड then expand this function in the region when mod z less than 2. When mod z is less than 2, it is obviously less than 3. So f of z is equal to z plus 2 में 2 बड़ा है इसलिए 2 क्वांटिटी कॉमन निकालेंगे, z plus 3 में से 3 z से बड़ा है इसलिए 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे। So 1 plus ये हो गया 3 by 2 and 1 plus z by 2 inverse, similarly minus 8 upon 3, 1 plus z by 3 inverse, and direct apply the result. This is expansion of the function. Second region, when mod z lies between 2 and 3, so z is greater than 2, इसलिए first factor में से हमने z कॉमन लिया, 3 is greater than z, second में से हमने 3 कॉमन लिया, direct apply the result, and this expansion is the expansion of same function in the region when mod z lies between 2 and 3. Clear? तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपको रिड्यूस करते आना चाहिए और रीजन भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा रीजन है। नेक्स्ट इज रेसिड्यू थ्योरम। If f of z is analytic within and on a closed curve C, except some finite number of singularities within C. अब मुझे लगता है इस स्टेटमेंट से एनालिटिक फंक्शन, क्लोज्ड कर्व, सिंगुलैरिटी सबका मतलब आपको मालूम है। सिंगुलैरिटी मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, एनालिटिक मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब अ रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व। So if f of z is analytic within and on a closed curve C, except some finite number of singularities within C, then integral over C f of z dz is equal to 2 pi I, sum of the residues at pole within C. ठीक है, तो अब रेसिड्यू क्या होते हैं ये हमको निकालना है। तो रेसिड्यू कहाँ पे निकालना है, पोल्स पे निकालना है। पोल्स मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो रेसिड्यू, अच्छा पोल्स कितने टाइप के होते हैं, पोल्स आपने पढ़ा बेसिक 2 टाइप्स, सिंपल पोल एंड मल्टीपल पोल। तो रेसिड्यू एट सिंपल पोल, if f of z has a simple pole at z is equal to a, then the residue at simple pole z minus a f of z at point z is equal to a. And residue at simple pole, at multiple pole of order n, so 1 upon n minus 1 factorial n minus first order derivative z minus a to the power n f of z at z is equal to a. ये हो गया रेसिड्यू एट मल्टीपल पोल, फर्स्ट है रेसिड्यू एट सिंपल पोल। ठीक है, स्टेट और स्पेशल केस
when f of z is of the form phi z upon psi z, where psi a is not equal to 0 and phi a is where psi, when denominator is equal to 0 and numerator is not equal to 0, in that case residue is numerator as it is upon derivative of denominator. ये लास्ट में देखेंगे हम, ये स्पेशल केस है डेरिवेटिव की. स्टेटमेंट समझो आप. रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ 2 पाई आई इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज एट पोल विद इन सी. मतलब ये जो पोल्स है वो किसमें होना चाहिए? विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी. सी के अंदर ही होना चाहिए. ठीक है. सिंपल पोल पे ये फॉर्मूला लगेगा, मल्टीपल पोल पे ये फॉर्मूला लगेगा, स्पेशल केस लास्ट में देखेंगे. राइट. सो पहला प्रॉब्लम देखो. इवैल्यूएट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी 1 minus 2z upon z, z minus 1, z minus 2, where c is the circle mod z is equal to 1.5. तो सबसे पहले हर बार सर्कल बनाएंगे, फिर पोल्स फाइंड करेंगे, उसको लोकेट करेंगे, जो विद इन द सर्कल है उन पे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, जो आउटसाइड द सर्कल है उनको इग्नोर करना है. ठीक है. So what is mod z? Mod z is equal to 1.5. So z is x plus iy. Mod of x plus iy is equal to 1.5. Magnitude of complex number is under root of x square plus y square is equal to 1.5, or x square plus y square is equal to 1.5 whole square. Means this is a circle, center at origin and radius is 1.5. ध्यान देना, रेडियस इज 1.5. तो आप स्क्रीन पे देखो, आपको सर्कल दिख रहा है, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 1.5. ये यहाँ लिखा है मैंने 1.5, 0. ठीक है. दिस पॉइंट इज 1.5. ओके. तो ये बन गया सर्कल सी. अब हम निकालेंगे पोल्स. z, z minus 1, z minus 2 is equal to 0. That means z is equal to 0, z is equal to 1, z is equal to 2. अब आप ध्यान दो, ये आइसोलेटेड है क्या? नहीं, बिकॉज 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर ये 0 हो रहा है. ठीक है. बट ऑल 3 पोल्स आर सिंपल पोल, क्योंकि तीनों वैल्यू एक एक बार ही आ रही है. 0 एक बार, 1 एक बार, 2 एक बार. So z is equal to 0, z is equal to 1, z is equal to 2. All 3 are simple pole. Now locate this pole. Z is equal to 0 का मतलब 0, 0. तो 0, 0 inside the circle. Second point, 1, 0 inside the circle because radius is 1.5, and 2, 0 outside the circle. Clear? 2, 0 lies outside the circle. Clear na? So 3 poles में से 2 poles lies inside, 1 pole lies outside, and according to residue theorem, integration is equal to 2 pi I into sum of the residues at poles within C. मतलब जो poles विद इन सी है उन पे ही रेसिड्यू कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे कितने पोल्स आ रहे हैं विद इन सी? 2. z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1. तो सिर्फ उसी पॉइंट पे हम पोल कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इज इक्वल टू 0, z into f of z. f of z is 1 minus 2z upon z, z minus 1, z minus 2 at z is equal to 0. तो ये z और ये z कैंसिल. नाउ सब्स्टिट्यूट z is equal to 0. Calculate this. So residue कितना आया? 1/2. Now residue at z is equal to 1. This is also a simple pole. So z minus 1 into f of z. So 1 minus 2z, z minus 1, z minus 2. So z minus 1 cancel and z is equal to 1. Substitute करेंगे, calculate it, it is equal to 1. So by residue theorem, integration is equal to 2 pi I into sum of the residues at pole within C. So function 2 pi I, दोनों पोल पे रेसिड्यू कितना आया? 1/2 plus 1. So 3/2, 2 and 2 cancel. So value of this integration is 3 pi I. Clear? Second problem देखो. Evaluate integral over C e to the power 2z plus z square upon z minus 1 whole to the power 5, where C is the circle mod z is equal to 2. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? C.
सिंपल है यार, मॉड z इज इक्वल टू 2, मतलब मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2, सो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, so x square plus y square is equal to 2 square, that means it is a circle, center at origin, radius is 2. सिंपल हो गया, ड्रॉ कर लिया। अब हम निकालेंगे पोल्स, z minus 1 to the power 5 is equal to 0, that means z is equal to 1 1 1 1 1, कितनी बार आएगा 5 times, same value repeated more than 1 times, that means it is multiple pole, 5 times repeat हो रही है, means order of that pole is 5. ठीक है, so first locate this point, if this point lies within the circle then only residue theorem is applicable, or then only this integration has some value, otherwise it is 0. So z is equal to 1 means 1 comma 0, so locate karo, this point lies inside the circle because radius is 2, so 1 comma 0 obviously inside rahega. ठीक है, now calculate pole at calculate residue at z is equal to 1. So z is equal to 1 पे residue देखो, multiple pole है of order 5, so 1 upon 5 minus 1 factorial, fourth order derivative of z minus 1 whole to the power 5 into function f of z. अब आप देखो z minus 1 whole to the power 5 cancel, so fourth order derivative of e to the power 2z plus z square. अब और यहाँ पे है 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, दैट इज 1/24. अब हम इसको एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स e टू द पावर 2z प्लस 2z, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 टाइम्स e टू द पावर 2z प्लस 2, थर्ड टाइम 8 e टू द पावर 2z, इसका 0 हो गया, नाउ लास्ट टाइम इट इज 16 e टू द पावर 2z एट z इज इक्वल टू 1, सो 16/24 e टू द पावर 2, z is equal to 1, so this is the residue. Now what is the value of this integration? It is 2 pi I into residue, so 16/24 e square, so solve this, this is 4/3 pi I e square is the value of this integration. Clear? Next problem, evaluate integral over c 1 upon sin hz dz where c is the circle mod z is equal to 4. ठीक है, तो सबसे पहले हम c को ड्रॉ कर लेंगे, mod z is 4, मतलब mod of x plus iy is equal to 4, under root of x square plus y square is equal to 4, so x square plus y square is equal to 4 square, means it is a circle, center at origin and radius is 4. तो हमने सर्कल ड्रॉ किया और सारे पॉइंट्स लिख लिए, 4,0, 0,4, -4, 0, 0, -4, दिस इज रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया हमारा c. ठीक है, अब पोल्स निकालना है, पोल्स मतलब जहां पे फंक्शन इज नॉट इक्वल टू sorry, when function is not defined, so denominator sin hz is equal to 0, sin hz means I into sin iz is equal to 0, ये relation between hyperbolic and trigonometric. So sin iz is equal to 0 and sin iz is equal to 0, मतलब z is sin theta is 0 means theta is equal to plus minus n pi ना, n theta, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, z is equal to plus minus n pi I, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and up to so on. ठीक है, so z is equal to pi I, सबसे पहले when n is 0 z is equal to 0, when n is 1 z is equal to plus minus n pi, when z is equal to 2 it is plus minus 2n pi and up to so on, ऐसा हो जाएगा 2 pi. तो अब आप देखो z is equal to 0, इसके कितने सारे पोल्स हो गए, इनफाइनाइट पोल्स हो गए, लेकिन अब हमको देखना है कि इसके सर्कल के अंदर कौन से पोल है. So when n is equal to 0, z is equal to 0 means 0, 0 lies inside. When n is equal to 1, z is equal to plus minus pi I, और pi की वैल्यू कितनी होती है, अब जहां पे z की बात कर रहे हैं इसको हमको x plus iy मतलब रियल में कन्वर्ट करना है, अल्जेब्रिक में कन्वर्ट करना है, तो pi की वैल्यू रेडियन में मतलब 3.14, and because of radius is 4, 3.14, this point lies inside the circle, so z is equal to
पाई आई मतलब 0,3.14 एंड z इज इक्वल टू माइनस पाई आई दैट इज 0,-3.14. दिस बोथ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल. अब जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-2 पाई आई. +-2 पाई आई मतलब ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग. 6 पॉइंट समथिंग ये आउटसाइड रहेगा बिकॉज रेडियस इज 4. क्लियर. when n is equal to 3 it is 9 point something, ये और बाहर. मतलब विद इन दी सर्कल इनफाइनाइट पोल्स में से कितने पोल हैं, सिर्फ 3. z is equal to 0, z is equal to pi I and z is equal to minus of pi I. ठीक है. अब जैसे पहले प्रॉब्लम में था वो हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि साइन एच जेड, इसके अगर पोल्स आए तो इसको साइन एच जेड को हम z-0, z-पाई, z+पाई ऐसे रख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं. तो ये जाएगा स्पेशल केस में जो थर्ड केस थी अपनी, है ना. गिवन फंक्शन क्या था यहाँ पे, 1/sin एच जेड. किस फॉर्म में है ये, phi z/psi z. ठीक. अब रेसिड्यू इसका z इज इक्वल टू a, तो z इज इक्वल टू a पे रेसिड्यू कितना लिखा था हमने, phi a/psi-a. यहाँ पे पहला पोल कितना, पहला पोल है z इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई आई. तो देखो माइनस ऑफ पाई आई, 1 is 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर साइन h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos h z. इसको हम लिखेंगे cos h, किस पॉइंट पे निकालना है, माइनस पाई आई पे, तो माइनस पाई आई. ये cos h है, हाइपरबोलिक है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो cos i माइनस पाई आई एंड i स्क्वायर इज -1. सो ये माइनस के साथ हो गया cos पाई एंड cos पाई इज इक्वल टू -1. सो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस पाई आई इज -1. क्लियर. नाउ रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0. सो 1/cos h, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है आपको, phi z/psi z. phi डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा. ठीक है. सो 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन h का cos h z एट z इज इक्वल टू 0. सो cos h 0. नाउ कन्वर्ट फर्स्ट दिस इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक. दिस इज cos I 0. cos I0 is cos 0, cos 0 is 1. So residue at z is equal to 0 is 1. Now third residue at cos pi I, at pi I. So 1/cos h z, cos h pi I, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये हो जाएगा cos I pi I. I into I is I square. I square is -1, तो ये हो गया cos minus pi, and because of cos minus theta is cos theta, it is cos pi only. Cos pi is -1, so residue at pi I is also -1. So according to residue theorem, it is 2 pi I. Sum of the residues at poles within C. यहाँ ध्यान दो, देखो within C है. सो इनफाइनाइट पोल्स में से सिर्फ 3 पॉइंट्स ही विद इन सी थे, 3 पॉइंट पे हमने रेसिड्यू कैलकुलेट किया. सो -1 +1 -1, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई आई. क्लियर. सो इंटीग्रेशन ओवर C 1/sin h z dz इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई आई. एक चीज यहाँ ध्यान दो, अगर ये प्रॉब्लम में mod z इज इक्वल टू सपोज रहता 2. क्लियर. सो व्हेन mod z is 2, मैं क्या बोल रही हूँ आप ध्यान दो, व्हेन mod z is 2, रेडियस इज 2, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2, और उस केस में z is equal to 0 is the only pole which lies within the circle, because 0 के बाद कौन सा पोल आता है, 3.14, एंड 3.14 z is equal to 2 से ज्यादा है तो वो बाहर रहेगा. तो उस केस में z is equal to 0 is the only pole. सो जब हम रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे सिर्फ z इज इक्वल टू 0 के लिए. एनी डाउट. तो उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, सेम इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो याद रखो, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जब भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, c का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर c चेंज हो जाता है तो सेम इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है. क्लियर. सो रेसिड्यू थ्योरम, एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन, कॉचीज थ्योरम, हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, ये बहुत वास्ट है एक्चुअली, 2 घंटे में मैंने बताने की कोशिश की है.
आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा, आप लोग पूछ सकते हो. थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क. हेलो. Yes, do you have any questions, students? Yes, you can ask your questions now. Okay, so we can end now. Thank you so much, ma'am, for sharing this knowledge regarding maths and giving your valuable time. Thank you so much, ma'am. We can end now. ओके, थैंक यू मैडम. हो ना, बाप रे बहुत ज्यादा. Yes, students, you can leave the meeting now.